अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बॉटनी पेपर सी का फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स को लास्ट टाइम फिनिश किया था। इस चैप्टर के अंदर हमने 4 डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स डिस्कस किए थे: कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। आज हम बॉटनी पेपर सी का सेकंड चैप्टर सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन भी है। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली जो सेल को सराउंड करती है, और केमिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ 60 to 80% प्रोटीन, 20 to 40% phospholipids, cholesterol in small amount and carbohydrates in small amount. Different models were put forward about the physiochemical nature of plasma membrane. First is sandwich model. This model was put forward by two scientists, Davison and Danieli, in 1935. According to this model, lipid bilayer is surrounded by a two-layer of protein like a sandwich. This model was given by Davison and Danieli in 1935. According to this model, lipid bilayer is surrounded by a two-layer of protein like a sandwich. Davison and Danieli also suggested that all the membranes of a cell have similar structure. This was the most acceptable model of that time. But the two objections were raised against this model. फर्स्ट ऑब्जेक्शन था कि तमाम की तमाम मेम्ब्रेन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक जैसी दिखाई नहीं देती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसकी थिकनेस है 7 to 8 नैनोमीटर, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो होती है 6 नैनोमीटर। क्योंकि डेविसन एंड डेलरी ने ये कहा था कि तमाम की तमाम मेम्ब्रेन है का जो वो सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, तो ये चीज़ प्रूफ नहीं होती थी। इसके साथ साथ जो परसेंटेज है प्रोटीन्स और लिपिड्स की वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और जो दूसरी मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनेल्स के अंदर डिफरेंट है, वो सेम नहीं है, तो ये एक ऑब्जेक्शन था। दूसरा ऑब्जेक्शन ये था कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल की प्लेसमेंट है उसमें भी कंट्रोवर्सी थी। बहुत सारे रिसर्चर इस प्रोटीन की लोकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते थे जिस तरह के सैंडविच मॉडल के अंदर डिस्क्राइब किया गया था। तो फिर एक मॉडिफाइड मॉडल दिया गया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। This model was put forward by two scientists, Singer and Nicholson, in 1972. According to this model, membrane is a bilayer of phospholipids and protein. It is present in the form of fluid. Phospholipid bilayer form a fluid sea, while the proteins float in the sea like an iceberg. Membrane is in a constant state of shifting and changes, but it retains its uniform structure. The word mosaic is used for the different kinds of protein, and these proteins are dispersed in the phospholipid bilayer. This is called fluid mosaic model. बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि जो मेम्ब्रेन है ये बाइलेयर है फॉस्फोलिपिड्स की और प्रोटीन की। ये दोनों बाइलेयर की फॉर्म में होते हैं। फॉस्फोलिपिड जो है ये बनाता है, ये फ्लूइड की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एक सी बनाता है और प्रोटीन उस सी के अंदर फ्लोट करते हैं जिस तरह के आइसबर्ग फ्लोट करते हैं। और ये मेम्ब्रेन जो है एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ शिफ्टिंग चेंजेस होती हैं, लेकिन इट रिटेन्स इट्स यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल and this is the acceptable model. Following are the important points of fluid mosaic model. First is the phospholipids. Phospholipid फर्स्ट का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। A phospholipid molecule has a polar head and non-polar tail. Phospholipid molecule is similar to a fat molecule. It has also a fatty acid chain and glycerol portion, but it has only
two fatty acid chains. Third fatty acid chain is replaced with a nitrogen containing group. And the phospholipid has two ends, polar end which is called head, non-polar end which is called tail. Polar head has phosphate group, and polar spherical heads are located over the cell surface, and they are hydrophilic, while the non-polar tail has fatty acid chains. Non-polar tail face each other in the middle of the bilayer, and non-polar tail attract with each other and they are repelled by water, so they are called hydrophobic. नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी पाया जाता है. कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जो मेम्ब्रेन की इंटीरियर साइड पे इम्बेडेड होते हैं और ये बनाते हैं मेम्ब्रेन को लेस परमिएबल फॉर द वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस. कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल बेसिकली मेम्ब्रेन को एक रिजिड स्ट्रक्चर बना देता है और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जो है ये मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करते हैं इस तरह. नेक्स्ट है प्रोटीन्स. जो मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स होती हैं ये इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होती हैं. टू टाइप्स की प्रोटीन्स हैं, पेरिफेरल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन. ऐसी प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन की इनर और आउटर सरफेसेस के साथ अटैच होती है उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन. और ऐसी प्रोटीन जो कि लिपिड बाई लेयर के अंदर इम्बेडेड होती हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन. नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स. कुछ जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन के साथ लिंक्ड होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. और कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन के क्रॉस आयंस और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में इन्वॉल्व होती हैं. और इसी तरह कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होती हैं वो जो मेम्ब्रेन को सेल की इनर साइटोस्केलेटन और वेरियस मॉलिक्यूल्स आउटसाइड सेल के साथ अटैच करवाती हैं. दीज आर द फंक्शंस ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन. नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स वेरियस फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. अगर तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ कंबाइन करते हैं या फिर यूनाइट करते हैं तो उनको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन. अगर वो कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ कंबाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड. दीज आर दी कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट है ग्लाइकोकैलिक्स. सरफेस कार्बोहाइड्रेट्स और पोर्शन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड मिलके आपस में क्या बनाते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स बनाते हैं या फिर इसको हम सेल कोट कहते हैं. लास्ट में हम देख लेते हैं व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द मटेरियल्स मूविंग इनटू एंड आउट ऑफ द सेल. ऐसे मटेरियल जो कि सेल के अंदर या बाहर जा रहे होते हैं उसको सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट करती है. सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स इनसाइड द सेल फ्रॉम द आउटसाइड. जो सेल का इनसाइड का पोर्शन होता है और जो आउटसाइड का पोर्शन होता है उसको अलग कर देती हैं. इट सेपरेट्स वेरियस ऑर्गेनेल्स विद इन द सेल. ये एक सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को भी सेपरेट करती हैं. इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया ऑन विच अ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस कैन अकर. नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का वो है इट सेपरेट्स सेल्स फ्रॉम वन अनदर. ऐसा नहीं है कि ये एक सेल को इनर पोर्शन को आउटर पोर्शन से अलग करती है बल्कि ये डिफरेंट सेल्स को भी एक दूसरे से अलग करती है. सेल मेम्ब्रेन के ऊपर डिफरेंट साइट्स हैं फॉर रिसेप्टर्स. ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो कि सेल आइडेंटिफिकेशन मार्कर पर मुश्तमिल होते हैं और ये मार्कर डिफ्रेंशिएट करते हैं एक सेल टाइप को दूसरे सेल टाइप के से. और लास्ट जो फंक्शन लिखा हुआ है वो है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है या सेल मेम्ब्रेन ये कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है टू मूव इन एंड कीप अदर आउट. इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबिलिटी. यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये कुछ सब्सटेंसेस को मूव करने देती है और बाकी को मूव नहीं करने देती इनसाइड द सेल, जिसको हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेबिलिटी. और ये एसेंशियल है फॉर मेंटेनिंग द सेलुलर होमोस्टेसिस.
अब होम्योस्टेसिस क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट द फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। जैसा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहता है, हाँ हमारी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर 20 है या 45 है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है? 37 ही रहता है। इसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट द फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मूवमेंट्स अक्रॉस द जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे, जो कि डिफरेंट तरह की हैं। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह कल हम इस नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस कर लेंगे। तो आप कुछ ना कुछ टाइम स्टडी को ज़रूर दिया करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर देते होंगे। तो इंशाल्लाह हम कल दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।